Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the platform of Noor School and College for the online lecture series of Physics Grade 12. Dear students, today we are going to discuss something about the Ohm's law and resistance. But before going to the main topic resistance, I would like to have a very quick review on Ohm's law. Let's have a review on Ohm's law. In the last lecture, we discussed about the Ohm's law, and we know that Ohm's law is the fundamental law in the studies of electricity. Ohm law is having the same character as Newton's laws in mechanics. So, according to Ohm's law, we studied that Ohm law is in fact a relation between two quantities, voltage and current. Voltage is represented by V and current is represented by I. In fact, voltage and current, these two are the two types or two flavors of electrical energy. Electrical energy comes in pairs of voltage and current, like any other pairs of energy, like kinetic energy and potential energy. Kinetic and potential energies are the pairs of mechanical energy. Similarly, light and heat are the pairs of thermal energy. Similarly, voltage and current, they are the factors, they are the flavors, they are the types of electrical energy. Electrical energy comes in two things, in the form of voltage, in the form of current. Clear? Okay, this was the Ohm's law. In Ohm's law, we studied that Ohm presented a relationship between voltage and current. Ohm was the first scientist who joined voltage and current and gave us a unified formula in which voltage and current were combined. एक फार्मूला ओहम ने दिया जिसमें वोल्टेज और करंट का एक फार्मूला हमारे पास बनता है, ये वाला. ओहम से पहले वोल्टेज और करंट का कंसेप्ट तो था, लेकिन उनका कोई यूनिफाइड फार्मूला नहीं था. ओहम वाज द ओनली साइंटिस्ट हु related the concept of voltage and current with the help of his famous formula V is equal to IR. Okay, now what is the relation between voltage and current? According to Ohm's law, the current in a wire is directly proportional to the अप्लाइड वोल्टेज. जब हम किसी इलेक्ट्रिक वायर के साथ कोई सेल या बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी या सेल का काम क्या है कि वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आगे पुश करता है, उनको आगे मूव करवाता है एक डायरेक्शन में. जब वो चार्जेस मूव करते हैं तो उसे हम करंट कहते हैं. वो करंट डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का फिर ये मतलब बनता है कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा करंट वायर में फ़्लो करेगी. जितना कम वोल्टेज होगा उतनी कम करंट. तो ग्रेटर करंट फॉर ग्रेटर वोल्टेज, लेस करंट फॉर लेस वोल्टेज. इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. नाउ करंट इज़ रिप्रेजेंटेड एज I and voltage is represented as V. I is directly proportional to V, या current is directly proportional to voltage. Removing the sign of proportionality, instead of this proportionality sign we write an equation and a constant. I is equal to constant into V. Now here the constant is not simply R, but it is 1 over R, 1 divided by R. So I is equal to this constant 1 over R into this voltage V. Now if you multiply 1 over R into V, we get V over R. So I is equal to V over R. Now rearranging this term, if I shift resistance to the left side, at the right side the resistance is being divided with V. When I take the resistor to the right side, I will get V is equal to IR. Here it is written V is equal to IR. This is the mathematical formula of Ohm's law, in which V is the voltage, I is the current
and R is the constant of proportionality. Later we will see that this R is called resistance. Okay, dear students, after that we discussed the important concept of Ohm's law, the validity, कि ओहम लॉ की वैलिडिटी क्या है, ओहम लॉ कहाँ पर वैलिड होता है और कहाँ पर ये फेल हो जाता है। वैलिडिटी का ये मतलब होता है वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ओहम्स लॉ अप्लाई होता है। तो याद रखें, देयर आर 3 मेन पॉइंट्स। ओहम लॉ इज वैलिड ओनली इफ 3 थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। इफ टेम्परेचर ऑफ द वायर और रेजिस्टर और सब्सटेंस शुड नॉट चेंज, टेम्परेचर को सेम होना चाहिए। फिजिकल स्टेट, किसी वायर, जिस वायर के अंदर से हम करंट पास करते हैं वोल्टेज लगाकर, तो जब तक करंट उसके अंदर से फ्लो करती जाएगी उस वायर की जो फिजिकल स्टेट है यानी वो सॉलिड है तो उसको सॉलिड ही रहना चाहिए। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। देखें, इसकी मिसाल इस तरह है जैसे आप बर्फ़ को समझें। बर्फ़ जो है आइस, इट्स अ सॉलिड, लेकिन जब आप उसको हीटअप करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो पिघल के पानी बन जाता है, लिक्विड। तो इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। तो अब फिजिकल स्टेट या फिजिकल चेंज वायर में नहीं आनी चाहिए। वायर के अंदर जब तक करंट गुजरती रहती है उस वायर को सॉलिड ही रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट। अगर वायर का टेम्परेचर करंट के साथ इंक्रीज ना हो, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, यानी वो दोनों सेम रहें, जो टेम्परेचर पहले था वो बाद में था, तो टेम्परेचर में चेंज ना आए, टेम्परेचर सेम रहे, फिजिकल स्टेट जो पहले थी यानी सॉलिड वो बाद में भी सॉलिड ही रहे, तो फिजिकल स्टेट में भी तब्दीली या चेंज नहीं आती, उस वक्त ओहम लॉ वैलिड है। और तीसरी चीज़ रेजिस्टेंस, ये हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस असल में टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है। देखें, एक बात याद रखें, जब किसी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। और ये हमारा अगला टॉपिक है, इसलिए बस आप सिर्फ ये बात याद रखें कि टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट और रेजिस्टेंस, ये 3 चीज़ें वायर की चेंज नहीं होनी चाहिए, इनको सेम रहना चाहिए। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच आर कॉल्ड द वैलिडिटी ऑफ ओहम्स लॉ। देखें, हमने ऊपर ये डिस्कस किया था कि करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वर्ड आता है तो उसका जिस वक्त हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास हमेशा जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट बनती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो, वो लाइन स्ट्रेट बनती है। लेट मी इलस्ट्रेट। देखें, ये 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसमें लाइन यूं अपवर्ड जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ग्राफ लेते हैं, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन में लाइन ऊपर से नीचे आती है। ये ऊपर वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी एक क्वांटिटी को आप ज़्यादा करें दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी को आप आगे लेके जाते हैं लेकिन दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू रफ्ता कम हो रही है। एक क्वांटिटी आप आगे लेके जाएं, दूसरी क्वांटिटी नीचे की तरफ आ रही है, कम हो रही है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ऊपर वाले केस में एक क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शन का ग्राफ हो। ये डायरेक्टली नीचे से ऊपर जा रहा है और इन्वर्सली ऊपर से नीचे आ रहा है। ग्राफ चाहे डायरेक्टली हो या इन्वर्सली हो, होता वो स्ट्रेट लाइन है। इसको देखें, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अब चूंकि ओहम लॉ में करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इसका ग्राफ बनता है नीचे से ऊपर और वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का यही मतलब है कि टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट और रेजिस्टेंस क्या रहती हैं, सेम सेम सेम। क्लियर? जब क्वांटिटीज सेम रहती हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है। दिस इज द वैलिडिटी ऑफ ओहम्स लॉ। ओके, नाउ dear students, come to the next topic, resistance. Now we will consider what is actually resistance. Resistance जो है डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखें द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस वन। ये जिग जैग एक सिंबल होता है, देखें जिस तरह बैटरी का सिंबल
इस तरह होता है, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट को पॉजिटिव, नेगेटिव प्लेट को, छोटी प्लेट को नेगेटिव कहते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है, ये सिंबल कैपेसिटर का होता है, ये सिंबल हम आगे पढ़ेंगे जो कॉइल बनी होती है ये इंडक्टर या कॉइल होती है, हर एक चीज़ के सिंबल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इस पूरे रेजिस्टेंस को लिखने के बजाय हम उसका सिंबल डाल देते हैं, वोल्टेज सोर्स को लिखने के बजाय हम बैटरी का ये सिंबल डाल देते हैं। तो ये बैटरी देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि ये यहाँ पे सेल लगा हुआ है, जहाँ पे सर्किट में ये लगा है तो समझ जाएं वो रेजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये लगा हुआ है तो कैपेसिटर है, अगर ये लगा है तो कोई कॉइल है। दीज आर द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। तो रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल सिंबल ये पाथ होता है जिगजैग, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड सो ऑन। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस, अच्छा ये रेजिस्टेंस का जो लफ्ज़ी मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? इस रेजिस्टेंस का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ को अपोज करना, किसी चीज़ की मुज़ाहिमत करना, मुज़ाहिमत, किसी चीज़ को रोकना। सॉरी इफ आई एम रॉन्ग इन दिस उर्दू। रेजिस्टेंस मीन्स टू अपोज, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। रेजिस्टेंस का वही कंसेप्ट है जिस तरह जैसे फ्रिक्शन, रगड़, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है तो एक बॉडी दूसरे को फ्रिक्शन की मदद से रोकने की कोशिश करती है, उसकी फ्लो को कम करने की कोशिश करती है। जैसे गाड़ी के ब्रेक्स होते हैं, गाड़ी चल रही है तो आप ब्रेक लगाएं, वो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी को रोकती है, अपोज करती है। सो रेजिस्टेंस का भी यही काम है कि ये भी किसी चीज़ की फ्लो को रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। अब किस चीज़ को अपोज करेगी? करंट को। क्लियर? क्योंकि वायर के अंदर से करंट फ्लो कर रही होती है तो वायर उस करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, उस इंटरनल प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके, ये आगे समझ आ जाएगी, देखें जरा। रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। दूसरा पॉइंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वही बात हो गई, रोकना, मुज़ाहिमत करना या ब्लॉक करना, स्टॉप करना। द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को रोकने का नाम रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? तो अब इसका फॉर्मूला देखें। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। इसमें से R की वैल्यू निकालें, IR के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर वो डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू V बाय I। नाउ द यूनिट इज ओहम। जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसको ओहम कहा जाता है। अब ये ओहम के नाम पे इसका यूनिट का नाम रखा गया है क्योंकि ओहम वो पहला साइंटिस्ट है जिसने रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, वोल्टेज और करंट को यूनिफाई करके एक फार्मूला बनाया, उसमें उसके पास रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आया। रेजिस्टेंस की ये वैल्यू होती है V बाय I। इस वजह से ओहम के नाम पर उसका यूनिट रखा गया है। जैसे जाउल जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे है, न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट, वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, वाट जो है वो भी एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे रखा गया है। तो जो कंसेप्ट्स होते हैं ये अक्सर साइंटिस्ट के नाम पे रखे जाते हैं। जैसे प्लांक्स कांस्टेंट हो गया है, इसी तरीके से बाकी जो वेन्स कांस्टेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टीफन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, OHM, ओहम, ये इसका सिंबल है। लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि ये उल्टा U होता है, इसके साथ थोड़े से ये लगे होते हैं, तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम। नाउ 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। देखें, न्यूमरेटर में वोल्टेज है और डिनोमिनेटर में करंट है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर इज कॉल्ड ओहम। तो 1 ओहम इक्वल होगा जब हम 1 वोल्ट की बैटरी लगाएं और वायर में कितनी करंट पास करे? 1 एम्पियर, तो उस वायर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 1 ओहम। क्लियर? नाउ रीजन। नाउ लेट अस गो थ्रू द रीजंस दैट व्हाट आर द रीजंस ऑफ रेजिस्टेंस। हम ये तो कहते हैं कि वायर के अंदर रेजिस्टेंस होती है जो फ्लो ऑफ करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वाई, क्यों? क्वेश्चन मार्क।
व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस? तो बेसिकली दो रीजंस हैं, ये अपने जहन में रखें। नंबर ऑफ एटम्स इन अ सब्सटेंस, के कितने एटम्स हैं सब्सटेंस में। कोई भी सब्सटेंस अगर है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है या कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर कितने एटम्स हैं। अगर जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी मेन रीज़न है कि नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, एटम्स वाइब्रेट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। ये हम जानते हैं कि एटम जो है वो कभी भी रेस्ट पे नहीं हो सकता, वो हल्का वाइब्रेट करे या ज़्यादा वाइब्रेट करे, अलबत्ता वो वाइब्रेट करता रहता है। दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन योर माइंड। 6 पॉइंट्स हैं, ये अपने जहन में रखें। थिन वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। जो पतली वायर होती है, थिन मीन्स पतली, थिन पतली वायर, थिन वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। थिक वायर हैज़ लोअर रेजिस्टेंस। उसके मुकाबले में थिक वायर, थिक का मतलब मोटी वायर, ये आगे आप देख लें फिगर्स। ये एक पतली इलेक्ट्रिक वायर है, ये देखें, ये ज़रा मोटी इलेक्ट्रिक वायर है। तो पतली वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और जो थिक वायर या मोटी वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों। दूसरा पॉइंट देखें, लॉन्ग वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। एक लंबी जो वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और शॉर्ट वायर हैज़ लोअर रेजिस्टेंस। इस वायर को देखें, ये लंबी वायर है और इसको देखें, ये इस ऊपर वाली लंबी वायर का आधा है। क्लियर? तो जो लंबी वायर होती है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, शॉर्ट वायर या जिसकी लेंथ कम है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तीसरा पॉइंट, हॉट वायर हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस। हॉट मीन अगर कोई वायर उसको आप हीटअप करें, वो हॉट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और आप याद करें, ये पीछे हमने वो डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जिस वायर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? एंड कोल्ड वायर हैज़ लोअर रेजिस्टेंस। और ठंडी जो तार होती है वायर, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो एक्चुअली ये 3 इसमें बुनियादी चीज़ें हैं, थिन और थिक, यानी पतली वायर और मोटी वायर। ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। थिन और थिक में जो कंसेप्ट है, फिजिक्स में हम थिन और थिक तो नहीं कहते ना, फिजिक्स में हम इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, एरिया। और लॉन्ग वायर हैज़ शॉर्ट रेजिस्टेंस, शॉर्ट वायर हैज़ लॉन्ग। लॉन्ग और शॉर्ट में जो कंसेप्ट आता है वो किस चीज़ का आता है, लेंथ। क्लियर? सिमिलरली ये हॉट और कोल्ड का फिजिक्स में कंसेप्ट होता है टेम्परेचर। ये देखिए, एरिया, लेंथ और टेम्परेचर। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ओके, नाउ दिस वाज now dear students, we are going to discuss the factors in detail. अब उन्हीं फैक्टर्स को हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, 3 फैक्टर्स हैं, लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर। लेंथ में वही वो लॉन्ग और शॉर्ट वायर की बात आएगी, एरिया में वो पतली और मोटी वायर, थिन और थिक की बात आएगी, और टेम्परेचर वो कोल्ड और हॉट वायर की बात आएगी। अलबत्ता टेम्परेचर का अगला टॉपिक होगा, ये स्पेशल केस है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल हम लेंथ और एरिया को कंसिडर करते हैं। क्लियर? फार्मूला, अच्छा, ये फार्मूला बेस करता है इस कंडीशन पर कि अगर टेम्परेचर ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर, वायर के टेम्परेचर, 3 फैक्टर्स होते हैं ना, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट समझें, आप टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस ना करें, आप ये कहें कि वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी फिर 2 चीज़ें रह जाती हैं, लेंथ और एरिया। अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लुक एट दिस फार्मूला। हमने पिछले पहले पॉइंट में कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स जब ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। आपके पास एक वायर है,
उसकी लेंथ को अगर आप ज़्यादा करें, लेंथ को फ़र्ज़ करें डबल करें, तो एक्चुअली लेंथ को डबल करने पर उसके नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो जाएंगे या नहीं। फ़र्ज़ करें 1 फुट वायर में, या इस मार्कर को देखें, इस मार्कर की जितनी भी लेंथ है इसमें अगर 1000 एटम हैं, इतना ही अगर एक लंबा मार्कर यहाँ से यहाँ तक अगर हो, लंबे मार्कर में अगर एक मार्कर इतना है उसमें 1000 एटम है, इसका डबल मार्कर होगा उसमें 2000 एटम होंगे, इसका ट्रिपल मार्कर होगा उसमें 3000 एटम होंगे। एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ एटम्स। तो लेंथ जितनी वायर की ज़्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, इसलिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्लियर। अब थिन और थिक की ये बात है, जो थिन वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। और जो मोटी वायर या थिक वायर होती है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। क्लियर। नाउ इक्वेशन रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2, इनको अगर आप ज्वाइन करें, R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाय A, रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू, और कांस्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दिस इज़ द सिंबल, और इसको पढ़ा जाता है रो, RHO, रो। रो इज़ कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज। ये किसी भी चीज़ की इंटरनल एक नेचर होती है, हम जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो फॉर मेटल्स इज़ लेस। मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होती है, इसलिए मेटल्स के अंदर से करंट हमेशा आसानी से गुजर जाती है, जबकि नॉन मेटल्स में रो की वैल्यू ज़्यादा होती है, उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें से करंट गुजरना मुश्किल होता है। अब देखें, आयरन, कॉपर, गोल्ड, लोहा, कॉपर और सोना, ये सब के सब मेटल्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी कम है, इसलिए इनमें से इजीली करंट गुजर सकती है। जबकि आप लकड़ी, प्लास्टिक या रबड़ की बात करें, ये सब के सब नॉन मेटल्स हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इनमें करंट पास नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेक योर नोट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।